मदर टेरेसा गरीबों की माँ थी। For mother, it's not the poor, it's the poorest. She's serving the sick and the dying, and it's very important that people go out and help others. A global icon. She was a small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. Abortion has become the greatest destroyer of peace because it destroys the presence of God. One of the most influential women of 20th century. Of all the women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. Mother Teresa, called the Angel of Calcutta for her work in Indian slums, today won the Nobel Prize for Peace. और अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी। Beatam Teresiam de Calcutta, Santam esse discernimus et definimus. लेकिन क्या उनकी कहानी उनके लेगेसी को जस्टिफाई करती है? She did not have much regard for the poor. She was a very cynical person when it came to charity and the poor. क्या मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिया जाना चाहिए था? While the bank account was getting higher and higher, the funds didn't find their way out into the poor. क्या वो सच में मॉडर्न डे मसीहा थी? Because I feel that Sister Teresa is a walking saint. If I'm in this group, that I will come closer to God. या फिर एक शैतान जिसे गरीबों की पीड़ा देखकर मजा आता था। তুমি মা আমার চিন্তা করেছো কি চিন্তাময়ী তারা তুমি। डॉक्टर जेक प्रेगर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे और 1972 से ही कलकत्ता में गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रहे थे। उन्होंने मदर टेरेसा को पहली बार बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में देखा था। Here in this area we have got about 400. These very bad cases or not. And he was impressed. And जब मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला, उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ काम करना शुरू कर दिया और तुरंत उन्हें मालूम पड़ गया कि जो मदर टेरेसा के बारे में दुनिया भर में दिखाया जा रहा है वो सब कुछ झूठ है। A great deal more should have been done in terms of modern medical care. The defense always was, we're not a medical order. डॉक्टर ने देखा मदर टेरेसा के आश्रम में मेडिकल केयर की कोई व्यवस्था नहीं थी। All the patients had shaved heads. There are no chairs anywhere. There are just these stretcher beds, and they're like First World War stretcher beds. There's no garden, no yard even, no nothing. And I thought, what is this? This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. एक इंजेक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था। कई इंजेक्शंस को धार तक नहीं होती थी। The needles they used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. She says, "There's no point. There's no time." डॉक्टर कहते हैं एक बार एक औरत जली हुई हालत में वहां आई और उसे पेन किलर तक नहीं दिया गया। There was one young woman with terrible burns and no painkillers. We managed to get morphine and smuggled the morphine into this woman and helped her with her pain. बच्चे जो सब्जियों की तरह एक के साथ एक रखे होते थे, सिस्टर्स उनकी ओर ध्यान तक नहीं देती थी। Mother would tell us that we could pick up the babies to feed or to change them, but when the feeding or changing was done, we must immediately put those babies down, as holding a baby could lead to attachment. कई बच्चों को बेड से बांध दिया जाता था। मदर टेरेसा को पूरी दुनिया भर से मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, and still मदर टेरेसा इन हाउसेस को मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं कर रही थी। He had a really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics, and he actually needed an operation. And she said, well, they won't take him to hospital. And I said, why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital, demand that he has treatment, get him an operation. She said, they don't do it. They won't do it. If they do it for one, they do it for everybody. And I thought, but this kid's 15. मदर टेरेसा ने उस 15 साल के बच्चे को मरने दिया
जो एक साधारण मेडिकल ऑपरेशन से बच सकता था। मदर टेरेसा के पास इतना पैसा था कि वो एक अच्छा खासा हॉस्पिटल चला सकती थी इन पीड़ितों के लिए, इन गरीबों के लिए, लेकिन मदर टेरेसा ने ऐसा नहीं किया। और जब मदर टेरेसा से कुछ लोगों ने सवाल किए उनके इन अनकन्वेंशनल तौर तरीकों के बारे में, तो उन्होंने कहा था, We are not social workers. The work is only a means to put our love for Christ into action. मदर टेरेसा को दुनिया भर से न केवल पैसा डोनेट होता था बल्कि मेडिकल सप्लाईज तक भेजे जाते थे, लेकिन उन्होंने उन मेडिकल सप्लाईज को कभी यूज नहीं किया। सफरिंग, पीड़ा मदर टेरेसा के स्पिरिचुअल मिशन का काइंड ऑफ आधार था। 1984 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुए गैस लीक के कारण भोपाल में 2500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और लाखों लोग इस गैस के प्रभाव में आन पड़े। इट वॉज अ ट्रेजेडी। लोग बड़ी दर्दनाक हालत में मर गए। लोग रास्ते पर उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट दिस मल्टीनेशनल कंपनीज। और पता है मदर टेरेसा ने इस ट्रेजेडी के बारे में क्या कहा? What is your message to the people of Bhopal? Forgive. दिस लेडी, इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा कि हजारों लोग दर्दनाक पीड़ा से मर गए। मदर टेरेसा को लोगों को पीड़ा में देखकर मजा आता था। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 20 साल एज ए नन काम कर चुके मैरी जॉनसन ने मदर टेरेसा के कल्ट को छोड़ा, और इस कल्ट को छोड़ने का कारण उन्होंने अपनी किताब में लिखा। एंड जब मैंने वो किताब पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में इन नन्स की जिंदगी बेहद कठिन होती थी। इन्हें पॉवर्टी में जीने कहा जाता था। आई मीन नन्स को भीख मांगने भेजा जाता था, जबकि मदर टेरेसा के पास दुनिया भर का पैसा था। Eating whatever was begged or received, often including spoiled food. We used to have every day a bread and oil, and these things that we got from the begging couldn't swallow it. We were eating it. नन्स को केवल 2 जोड़ी साड़ियां दी जाती थी, और नन्स को हफ्तों तक नहाने तक नहीं दिया जाता था। कोई भी नन अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। उन्हें ना टीवी देखने दिया जाता था, ना न्यूज़पेपर पढ़ने दिया जाता था। उन्हें बाहरी लोगों से बात करने की अनुमति नहीं थी। अपने परिवार से तक मिलने की अनुमति नहीं थी। All communication with the outside world, except that once-a-month home letter, was prohibited, including talking with lay co-workers about anything other than work, limiting contact with family to once-a-month letters and 2 weeks of home visits once every 10 years. She was not allowing us to be human. इन नन्स को अपने कमर और बाइसेप्स पर नुकीले तार की चेन पहने रखने कहा जाता था, ताकि वो पीड़ा सहती रहे। There was a thing called discipline in Missionaries of Charity. Can you explain the discipline? We had a little kind of sort of a rope whip with which we would beat ourselves every day. नन्स को रोज अपने आप को कोड़े मारने कहा जाता था। पर क्यों मदर टेरेसा लोगों को पीड़ा में देखना चाहती थी, जबकि उनके पास इन पीड़ितों का इलाज करने के लिए पैसा था? क्यों मदर टेरेसा इन मासूम औरतों को डिसिप्लिन के नाम पर पीड़ा प्रदान कर रही थी? क्यों? ये एक सवाल मैं बार अपने आप से पूछता रहा, और इसका जवाब खुद मदर टेरेसा ने मुझे दिया। It is necessary for us to have that very close contact with Christ in the Blessed Sacrament, because Jesus in the appearance of bread and Jesus in the appearance of the broken bodies of our poor is the same Jesus. मदर टेरेसा चाहती थी कि ये नर्स अपने आप को कोड़े मारकर पीड़ा सहे, ये पीड़ित और भी पीड़ा सहे। पता है क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पर लटक कर हमारे पापों के लिए असीमित पीड़ा सही थी। लेकिन मदर टेरेसा क्रॉस पर लटके जीसस से इतना प्रभावित क्यों थी? मदर टेरेसा का जन्म स्कोपिये यूगोस्लाविया में हुआ था इन 1910। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस था। उसकी माँ एक रिलीजियस महिला थी और उसके पिता एक बिजनेसमैन थे, एंड दे वर हैप्पी फैमिली। लेकिन इस समय बेहद कठिन था। हर रोज सैकड़ों लोग आजादी की लड़ाई में मारे जा रहे थे, और इसी आजादी की लड़ाई के दौरान एग्नेस के पिता के दुश्मनों ने उनकी हत्या कर दी, और एग्नेस का हंसता खेलता परिवार बिखर गया। एग्नेस तब केवल 8 साल की थी, और अब 3 बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी एग्नेस की मां पर आन पड़ी। इस परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन था, लेकिन एग्नेस की रिलीजियस मां को जीसस क्राइस्ट पर विश्वास था, और यही विश्वास अब एग्नेस के मन में भर रहा था। एग्नेस मेंटली एंड इमोशनली
चर्च के रेडिकल सोच से जुड़ गई। उसे उस कैथोलिक चर्च में जीसस क्राइस्ट के सैक्रिफाइस की कहानी सुनाई गई। ईश्वर ने संसार को रचने के बाद सबसे आखिर में इंसान को बनाया। ईश्वर को इंसान बेहद प्रिय था, लेकिन इंसानों ने जब पाप करना शुरू कर दिया, ईश्वर इंसानों से दूर चले गए, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। और जब इंसानों के पापों का घड़ा भरने लगा, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र जीसस को हमें बचाने भेजा। मिडिल ईस्ट में एक अलौकिक बच्चे ने एक वर्जिन औरत की कोख में जन्म लिया। बच्चा जीसस था। केवल 12 साल की उम्र में जीसस धार्मिक शिक्षकों से ज्यादा ज्ञान रखता था। 30 साल की उम्र में जीसस ने प्रीचिंग करना शुरू कर दिया। उसने इंसानों को ईश्वर की लीला से फिर से ज्ञात करवाया। जीसस जहां भी जाता वहां वो लोगों की मदद करता। जीसस ने अनेक मिरेकल किए, अंधे को आंख दी, लंगड़े को पैर दिए। जीसस ने इवन कई मृत लोगों को फिर से जीवन तक किया। और इसी दौरान जीसस को कई लोग फॉलो करने लगे। इन फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और ये ज्यूइश लीडर को देखा नहीं जा रहा था, और उन्हें जीसस को अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहना पसंद नहीं था। ज्यूइश रिलीजियस लीडर्स और रोमन अथॉरिटीज ने जीसस को ईश्वर की निंदा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे मृत्यु का दंड दिया गया। लेकिन यही तो जीसस चाहते थे, और ईश्वर भी। इंसानों के पापों के कारण ईश्वर इंसानों से दूर चले गए थे, और इंसानों के अब तक किए गए पापों को मिटाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की बलि देना जरूरी था जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया हो। इसलिए ईश्वर ने जीसस को धरती पर भेजा ताकि जीसस हमारे पापों को मिटाने के लिए अपना बलिदान दे सके। लेकिन ये बलिदान भयानक पीड़ा से प्रभुक्त था। जीसस को रात भर पीटा गया। जीसस को कांटों का ताज पहनाया गया। फिर जीसस पर भयानक कोड़े बरसाए गए। जीसस का शरीर किसी बकरे के समान छिल गया। जीसस को क्रॉस पर लटकाया जाने वाला था, और उस क्रॉस को खुद जीसस को घसीटते हुए ले जाने कहा गया। जीसस के हाथ और पैरों को कीलों के माध्यम से इस क्रॉस पर ठोक दिए गए। जीसस ने असीमित पीड़ा का अनुभव किया। जीसस ने इंसानों के पापों के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। और पता है एग्नेस ने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? कि अगर ईश्वर के करीब जाना है तो इंसानों को पीड़ा एवं सफरिंग सहनी होगी। We see Christ in the broken body and we touch him, and that touch comes from the deep faith that Christ cannot deceive. It was her obsession with suffering and her obsession that people need to suffer in order to come close to Jesus. The biggest thing that I think that Mother Teresa should maybe be held accountable for is this cult of suffering that she's created. She definitely has a kind of harsh side. गरीबों का गरीब रहना, पीड़ितों की पीड़ा में पड़े रहना और नंस को खुद को पीड़ा पहुंचाना ही ईश्वर की असली सेवा है। वो इन लोगों को क्रॉस पर लटके जीसस से कंपेयर करती थी। लेकिन जितना भी मैंने ईश्वर और जीसस के बारे में पढ़ा, उतने में मुझे कहीं भी लिखित नजर नहीं आया कि ईश्वर के करीब जाने के लिए इंसानों को पीड़ा सहनी चाहिए। जीसस का आखिरी संदेश ये था कि इंसान एक दूसरे से प्रेम करे और अपने आप को पाप करने से रोके। लेकिन जीसस के इस संदेश का पालन करने के बजाय मदर टेरेसा ने ऐसे ऐसे पाप किए कि जिन्हें देखकर ईश्वर तो खुश नहीं होंगे। This is the BBC television service. 1969 ये वो साल था जब आई गेस मदर टेरेसा को वेस्टर्न वर्ल्ड जानने लग गई। 1969 में बीबीसी ने मदर टेरेसा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब डॉक्यूमेंट्री बाहर आई तब मदर टेरेसा वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गई। अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सोसाइटीज दुनिया भर में फैलने लगे। इन देशों में नए आश्रम खोले गए। हर साल 15 से 20 आश्रम खुलने लगे। अनेक देशों से सिस्टर्स मदर टेरेसा के इस कॉज को ज्वाइन करने लगे। Because Mother Teresa would always say, all our works are done for the love of God. For the love of God. Mother Teresa had so much love to offer, and the world was in shock. And the world was also taking a notice. Mother Teresa called the Angel of Calcutta for her work in Indian slums.
today won the Nobel Prize for Peace. आफ्टर नोबेल पीस प्राइज मदर टेरेसा को दुनिया भर में अवार्ड दिए जाने लगे, इंक्लूडिंग भारत रत्न। एंड द डोनेशंस स्टार्टेड कमिंग इन। न्यूयॉर्क में स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का एक ब्रांच था, होली गोस्ट। एक पूर्व नन कहती है केवल न्यूयॉर्क के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आश्रम को $50 मिलियन मिले थे। $50 मिलियन एक साल में, और पूरे मिशनरीज ऑफ चैरिटी को एक साल में $100 मिलियन मिले थे। अब अंदाजा लगाए मिशनरीज ऑफ चैरिटी को इतने सालों में कितना डोनेशन आया होगा। टू बी ऑनेस्ट, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पूरे आश्रमों में आए डोनेशंस का हिसाब लगाया जाए, और वो भी केवल 90 के दशक का, तो अंदाजा $बिलियन तक जाता है। बट गेस व्हाट, ये पैसा गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. The famine caused by drought is the worst in living memory, and now the rains have failed again for the third year in succession. इथियोपिया में जब लोग भूखमरी से मर रहे थे, मदर टेरेसा वाज द वन जो इथियोपिया के इन पीड़ितों को मिलने गई। न्यूज मीडिया ने फिर एक बार मदर टेरेसा की इस उदारता की तारीफ की। ये उदारता देखकर दुनिया भर से इथियोपिया के लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी को डोनेशंस भेजे गए। लेकिन जब एक पूर्व मिशनरीज ऑफ चैरिटी नन सुजैन शील्ड्स ने कहा कि इथियोपिया की मदद के लिए इतना पैसा आया है, हमें उन्हें भेज देना चाहिए, तो एक सीनियर सिस्टर ने कहा हम अफ्रीका में पैसा नहीं भेजते। पर यह पैसा तो उनके मदद के लिए आया था ना, राइट? She did not have much regard for the poor. She was a very cynical person when it came to charity and the poor. All she was interested in was promotion of her faith and herself. It's not that Mother Teresa इन पैसों का मिसयूज कर रही थी, बल्कि उन्होंने अरबों रुपए यूज ही नहीं किए। And the question still remains कि ये पैसा जाता कहाँ था? The thing is, इंडियन गवर्नमेंट का एक रूल है कि किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंट्स पब्लिक करने होते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने ऐसा नहीं किया था। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो उनके हाउसेस थे जहाँ डोनेशंस आते थे, वहां भी उन्होंने अपने अकाउंट सीक्रेट रखे थे। और मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के फाइनेंसेस को एक्सपोज करने के लिए एक जर्मन जर्नलिस्ट वाल्टर वुलेनवेबर ने जब रिसर्च की, तो उन्हें पता चला मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लगभग सारा पैसा वेटिकन बैंक में जाता है। लेट मी टेल यू, वेटिकन बैंक हमारे साधारण बैंकों जैसा नहीं है। आई मीन ये रोमन कैथोलिक चर्च का खुद का बैंक है, और वेटिकन बैंक को आज भी the most scandalous bank माना जाता है। In its 70 years of life, it has been accused by US and Italian police of money laundering for the mafia, for a Masonic lodge. There's been suicide and unexplained deaths. पूर्व मिशनरीज ऑफ चैरिटी नन कंफर्म करती है कि दुनिया भर में मिशनरीज ऑफ चैरिटी को जितना भी डोनेशन आता था, वो इस कैथोलिक चर्च के स्कैंडलस बैंक में जमा होता था। आई मीन इटालियन ऑथर जियानलुगी नज़ी अपने बुक द ओरिजिनल सिन में लिखते हैं कि अगर मदर टेरेसा अपने करियर के आखिरी में वेटिकन बैंक से अपना सारा पैसा निकालती, तो वेटिकन बैंक की तिजोरियां खाली हो जाती। यू कैन जस्ट इमेजिन कितना पैसा मदर टेरेसा इस बैंक में जमा करती थी। ऐसा नहीं था कि मदर टेरेसा को दुनिया भर से आ रहे इन अनगिनत पैसों से दिक्कत थी। वो चाहती थी और पैसा आए ताकि वो इन पैसों को करप्ट वेटिकन बैंक में जमा कर सके, और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए मदर टेरेसा तानाशाह, खूनी, चोर चक्कों की दोस्त बनने को भी राजी थी। ऐसा ही और एक बिजनेसमैन था चार्ल्स कीटिंग, जिसने मदर टेरेसा को $1.25 मिलियन डोनेट किए थे। एंड नॉट ओनली दैट, मदर टेरेसा ने चार्ल्स के प्राइवेट जेट्स तक इस्तेमाल किए। बट द थिंग इज, चार्ल्स कीटिंग ने उस वक्त के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया था। Mother T also accepted over $1 million from Charles Keating, whose junk bond debacle caused more than 21,000 old folks to lose their life savings. उसने गरीबों का पैसा लूटा था। चार्ल्स कीटिंग को कन्विक्ट किया गया, लेकिन जब चार्ल्स कीटिंग की कोर्ट में पेशी चल रही थी, मदर टेरेसा ने जज को एक कंट्रोवर्शियल लेटर भेजा, जिसमें वे कहती है, डियर ऑनरेबल लैंसिटो, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि मिस्टर चार्ल्स कीटिंग क्या काम करते हैं, और ना ही उनके बिजनेसेस के बारे में मुझे कुछ पता है। मुझे केवल इतना पता है कि उन्होंने हमेशा ईश्वर के गरीबों के प्रति दया एवं उदारता दिखाई।
और जब जरूरत पड़ी उन्होंने मदद की। इसी कारण मैं उन्हें ऐसे मोड़ पर नहीं भूलना चाहती जहां वे और उनका परिवार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। मिस्टर कीटिंग ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है और इसी कारण मैं आपको ये खत लिख रही हूँ। जब भी मुझे कोई किसी जज से बात करने कहता है तो मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ, मैं उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने कहती हूँ, अपने मन में झांकने कहती हूँ और वो करने कहती हूँ जो जीसस ऐसे परिस्थितियों में करते। और यही मैं आपसे मांग रही हूँ, योर ऑनर। गॉड ब्लेस यू मदर टेरेसा। बेसिकली मदर टेरेसा जज को चार्ल्स कीटिंग को माफ करने कह रही थी। सो जब ये खत पब्लिक प्रोसिक्यूटर पॉल टर्नी ने पढ़ा तो यू आर शॉक्ड। उन्होंने मदर टेरेसा को रिटर्न लेटर लिखा, डियर मदर टेरेसा, मैं लॉस एंजलिस काउंटी में डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हूँ और आपको दान देने वाले मिस्टर चार्ल्स कीटिंग का प्रोसिक्यूटर हूँ। मैंने आपका लेटर पढ़ा। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर चार्ल्स कीटिंग 17,000 लोगों से $252 मिलियन चुराने के जुर्म में दोषी पाए गए हैं और ये फ्रॉड मनी उनके एक्सुबरेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है। चार्ल्स के कई विक्टिम्स बेहद गरीब हैं। आप अपने आप से पूछिए कि इस परिस्थिति में जीसस क्या करते हैं जब उन्हें मालूम पड़ता जो पैसा उन्हें दिया गया है वो गरीबों से लूटा गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप चार्ल्स कीटिंग से लिया हुआ पैसा उनके राइटफुल ऑनर्स को वापस कर दें। सिंसियरली पॉल टर्नी। मदर टेरेसा डिडंट रिस्पॉन्ड और ना ही उन्होंने चार्ल्स कीटिंग से लिया हुआ पैसा वापस किया। शी वॉज अ हिपोक्रेट। मदर टेरेसा दुनिया भर में ढिंढोरा पीटती थी कि वह गरीबों के लिए अपना जीवन व्यतीत करती है और दूसरी ओर उस गुनहगार को माफ करने कहती है जिसने गरीबों से पैसा चुराया। और अपने बुरे काम एक्सेप्ट करने के बजाय मदर टेरेसा और भी भयानक विवादों में इन्वॉल्व होती रही। फादर डोनाल्ड मैगवायर एक बेहद पॉपुलर प्रीस्ट थे और वे एक पावरफुल स्पीकर भी थे। वे दुनिया भर में घूमते थे रिट्रीट्स करने के लिए जहां वे यंग लड़कियों को कैथलिक नन्स बनने के लिए प्रभावित करते थे। ही वाज अ मिशनरी। सो 90s में फादर डोनाल्ड मैगवायर मदर टेरेसा के लिए काम करने लगे और इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम मदर टेरेसा डोनाल्ड मैगवायर से बेहद इंप्रेस हो गई। मदर टेरेसा उन पर विश्वास करती थी और मदर टेरेसा के बिहाफ पर फादर डोनाल्ड मैगवायर दुनिया भर में रिट्रीट्स करते थे जहां वे यंग लड़कियों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी ज्वाइन करने के लिए प्रभावित करते थे। फादर डोनाल्ड मैगवायर इन रिट्रीट्स के दौरान रिलीजियस पेरेंट्स को परसुएट करते थे उनके यंग लड़कों को उनके पास इंटर्न रखने के लिए। ये यंग बच्चे फादर के साथ काम करते थे लेकिन इन रियलिटी फादर डोनाल्ड मैगवायर इन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करते थे। ही अब्यूज्ड माइनर बॉयज फॉर डेकेड्स लेकिन फाइनली 2009 में उन्हें सजा दी गई। एंड आई आस्क माई सेल्फ, फादर मैगवायर इतने सालों तक माइनर बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज करते रहे और कैथलिक मिनिस्ट्री को कोई खबर नहीं थी जबकि फादर मैगवायर के खिलाफ कंटिन्यूअसली कंप्लेंट्स आते थे। आई डिग डीप एंड आई फाउंड आउट दरअसल 1993 में एक कंप्लेंट के आधार पर फादर डोनाल्ड मैगवायर को मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया था। बट गेस व्हाट, 2 फरवरी 1994 में मदर टेरेसा ने मिनिस्ट्री के हेड ब्रैडली शॉफर को एक खत लिखा था जिन्होंने फादर मैगवायर को मिनिस्ट्री से निकाल दिया था। मदर टेरेसा ने ब्रैडली को लिखा था, डियर फादर ब्रैडली शॉफर, मैं सोसाइटी ऑफ जीसस की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फादर डोनाल्ड मैगवायर का गिफ्ट हमें प्रदान किया। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के चलते फादर डोनाल्ड मैगवायर पर विश्वास जताती हूँ। फादर आर्डन ने फादर मैगवायर का खत मुझ तक पहुंचाया जिसमें फादर डोनाल्ड मैगवायर अपनी नासमझी एडमिट करते हैं। मैं जानती हूँ इस घटना ने प्रीस्टहुड की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाई है और हमें प्रीस्टहुड की प्यूरिटी को और रेपुटेशन को गार्ड करना चाहिए। मुझे फादर डोनाल्ड मैगवायर पर पूरा विश्वास एवं कॉन्फिडेंस है और मैं चाहती हूँ फादर डोनाल्ड मैगवायर को फिर से मिनिस्ट्री में शामिल किया जाए। मिशनरीज ऑफ चैरिटी फादर डोनाल्ड मैगवायर को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। सो बेसिकली मदर टेरेसा सोसाइटी ऑफ जीसस के हेड को कह रही थी, आई नो फादर डोनाल्ड मैगवायर ने माइनर बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया है लेकिन मैं चाहती हूँ आप उन्हें छोड़ दें। एंड सोसाइटी ऑफ जीसस को मदर टेरेसा की बात सुननी पड़ी बिकॉज मदर टेरेसा विश्व स्तर पर क्रिश्चियनिटी का चेहरा बन चुकी थी और मदर टेरेसा इतना पैसा क्रिश्चियनिटी के लिए कोई नहीं ला रहा था। फादर डोनाल्ड मैगवायर को फिर से मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया गया और फादर डोनाल्ड मैगवायर ने और 10 साल माइनर बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया। मदर टेरेसा फादर डोनाल्ड मैगवायर को रोक सकती थी बट उन्होंने वैसा नहीं किया। शी नीडेड मैगवायर नॉट ओनली बिकॉज मैगवायर दुनिया भर से नन्स को रिक्रूट करते थे बट ऑल्सो फादर मैगवायर के दुनिया भर के रिच एंड पावरफुल लोगों से कनेक्शंस थे और उनके थ्रू मैगवायर मदर टेरेसा को डोनेशंस ला कर देते थे। मदर टेरेसा के लिए कुछ भी इनफ नहीं था। शी वॉन्टेड मोर एंड मोर मनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मदर टेरेसा एक मिशनरी थी और मिशनरीज का काम होता है दुनिया भर में घूमकर लोगों को ईश्वर की लीला सुनाकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। लेकिन मदर टेरेसा ने धोखे से लोगों को कन्वर्ट किया। उन्हीं से सुन लीजिए। Not one has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it.
because St. Peter will not let them go in. So we call baptism ticket for St. Peter. We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. So 29,000 have died in that one house from the time we began the work in 1952. But it's so beautiful to see the people die with so much joy. So you are telling me आप इन मौत की दहलीज पर खड़े कमजोर लोगों को कह रही है अगर स्वर्ग जाना है तो कन्वर्ट हो जाओ। आपने उन्हें भीख मांगा हुआ खाना और 5x5 की जगह दे दी तो आप उन्हें कन्वर्ट करेंगे। और इनमें से कई लोग बोलने और कुछ करने की हालत में भी नहीं होते थे। ये कैसा कन्वर्जन हुआ? कन्वर्जन तो दिल से होना चाहिए। ये तो धोखा है। आपने इन्हें स्वर्ग का टिकट तो दे दिया लेकिन एक पेन किलर नहीं दी। Was she a psychopath? I don't know। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मदर टेरेसा जैसे लोगों को संत तो नहीं मानना चाहिए। What do you say? God bless you, my mother. We shall follow you. Thank you. Convert the world. Convert the whole world.